Bollywood actor Rajkumar Rao has recently wished former Indian cricket team captain Saurav Ganguly in a very unique way on social media, as seen from his recent post on Instagram. The actor on Wednesday morning took to his social media handle and posted an image while wishing the former captain and wrote in the caption, "Happy birthday, our dearest Dada." The actor just dropped something truly unique on his social media handle as he unveiled the poster of his upcoming film titled Dada, the Saurav Ganguly Story, giving fans the first look at the biopic based on Saurav Ganguly's iconic cricketing journey. The reveal instantly grabbed attention and set the buzz rolling. The poster offered a glimpse of the actor standing shirtless on the iconic Lord's Cricket Ground balcony, recreating Saurav Ganguly's legendary 2002 NatWest Trophy celebration with a large Indian flag seen waving behind him. Dada, the Saurav Ganguly Story will also feature actress Tanya Manikala, who will be seen starring as Saurav Ganguly's wife, Donna Ganguly. Bollywood actress Kareena Kapoor is currently having the best time of her life with her better half, actress Saif Ali Khan, as they were seen spending some quality time on their vacation to an unknown location. The actress took to her social media handle and posted a bunch of pictures from their vacation and wrote in the caption, "Summer's going well, #HotHusband." It wasn't about the actress this time, while Saif Ali Khan featured in all the slides of the posted series and gave us full beach energy. The actor was spotted enjoying his time in the water in orange swimming shorts, looking relaxed and totally in vacation mood. The soothing background and the carefree vibe made the pictures a perfect holiday moment. Another standout slide from the series was a monochromatic shot of Steph stepping out of the water. With the sea behind him and that effortless soaked look, the actor gave the entire slide a pure cinematic feel and instantly elevated the whole series. Talking about their personal life, the couple first met on the set of Tushan in the year 2008. That sparked a much talked about relationship, during which Saif even got Kareena's name inked on his forearm. They further got married in the year 2012 and are now proud parents to two children named Taimur Ali Khan and Jahangir Ali Khan. एक्ट्रेस जेनेलिया अक्सर अपने क्यूट अंदाज, सादगी और बेहतरीन फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती है। इस बार भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका रॉयल एथनिक लुक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तस्वीरों में जेनेलिया डार्क चारकोल ग्रे और गोल्ड टोन के शानदार फ्लोर लेंथ अनारकली सूट में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने इस एथनिक लुक को हैवी स्टेटमेंट झुमकों और मैचिंग रिंग के साथ स्टाइल किया है। हालांकि उनके पूरे लुक का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उनकी लंबी चोटी पर सजी खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज है, जिसने उनके ट्रेडिशनल अंदाज में चार चांद लगा दिए हैं। मेकअप की बात करें तो जेनेलिया ने ग्लोइंग बेस, ब्राउन ड्राई मेकअप, डिफाइंड आईज और न्यूड ब्राउन लिप्स के साथ सॉफ्ट ग्लैम लुक चुना है। वहीं रॉयल कारपेट बैकड्रॉप और वार्म लाइटिंग उनकी तस्वीरों को क्लासिक और विंटेज टच दे रही है, जिससे उनका पूरा लुक और भी एलिगेंट नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जेनेलिया ने कैप्शन में लिखा है, "I was born to be authentic, not please everyone." जेनेलिया का ये रॉयल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वहीं अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो जेनेलिया हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। हाल फिलहाल में वो मराठी फिल्म बेड में नजर आई थी। वहीं आने वाले समय में वो महाराजा शिवाजी और गन मास्टर 9G जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरती दिखाई देंगी। अपनी दमदार एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीतने वाली शर्वरी वाघ इन दिनों अपनी पिछली रिलीज फिल्म मैं वापस आऊंगा और हालिया रिलीज अल्फा को लेकर सुर्खियों में है। एक और मैं वापस आऊंगा में उनकी शानदार एक्टिंग की जमकर तारीफें हुई थी, वहीं अल्फा में उनका दमदार एक्शन अवतार भी खूब चर्चा बटोर रहा है। इसी बीच शर्वरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं।
जिनमें उनका ट्रेडिशनल अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है। तस्वीरों में एक्ट्रेस गोल्डन ब्राउन शेड के बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट में नजर आ रही हैं। क्रिंकल टेक्सचर वाले इस आउटफिट पर की गई बारीक एम्ब्रॉयडरी इसकी खूबसूरती को और निखार रही है। अपने लुक को शर्वरी ने ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर स्टेटमेंट झुमकों के साथ स्टाइल किया है। वहीं सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप, ग्लोइंग बेस, न्यूड लिप्स और हल्के आई मेकअप ने उनके लुक में फ्रेशनेस ऐड ऑन की है। खुले सॉफ्ट वेवी बाल उनके एथनिक अंदाज को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ही शर्वरी ने अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा का जिक्र करते हुए फैंस के लिए एक खास वीडियो चैलेंज भी रखा। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जैसे कानों में हो बाली तेरे पास मैं। इसके साथ ही उन्होंने फैन से वीडियो बनाकर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने की अपील भी की। उनकी ये तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किए जा रहे हैं। फैंस उनके एथनिक लुक पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। शर्वरी के करियर की बात करें तो उन्होंने बेहद कम समय में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म बंटी और बबली 2 से डेब्यू करने वाली शर्वरी को उनकी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स मिले। इसके बाद वो महाराज और मुंजिया जैसी फिल्मों में नजर आईं। वहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैं वापस आऊंगा में उनकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें काफी तारीफें मिली। हाल ही में शर्वरी आलिया भट्ट के साथ अल्फा फिल्म में नजर आ रही हैं, जहां पर उनके एक्शन अवतार को काफी पसंद किया जा रहा है। Veteran Bollywood actor Anupam Kher shouted divine blessing at the Ram Mandir in Ayodhya and spoke about the donation controversy, which he tagged as wrong and said it shouldn't have happened. Speaking about his visit to the River Temple, Anupam revealed that he is shooting for the film Sri Ram Bhoomi. बहुत अच्छा लगा। नए फिल्म की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। फिल्म का नाम है श्री राम भूमि। मंदिर की स्थापना करने में कैसे कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, उस पर आधारित ये फिल्म है। कामाख्या जी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी स्टूडियोज को प्रोड्यूस कर रही है। कामाख्या जी इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। और हनुमानगढ़ी भी आया, आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। अयोध्या मेरे दादाजी बहुत आते थे। फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान के दिन भी आया था, आज भी आया। बहुत लोगों की भीड़, लोगों की आस्था देखकर आंख में अश्रु भी आते हैं और श्रद्धा का भाव भी आता है। When asked about the ongoing controversy surrounding the alleged misappropriation of cash and valuable contributed by devotees at the Ram Mandir, Anupam Kher said, क्या है कि घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है और राम जी जो हैं वो द्वापर युग से हैं, युगों से हैं। और उनके इसको हमें ही एक ऐसी घटना लेनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना चाहिए। On the professional front, Anupam Kher was last seen in the film Tanvi the Great. Next, he is set to reprise his role as Kamal Kishore Khosla in the sequel to the 2006 film Khosla Ka Ghosla. देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।